Hello dear students, कैसे हैं सभी? First of all, welcome on my channel Science वाला. So today we are come here to take up third part of the chapter Metals and Non-Metal Chemistry class 10th. In this part, we will discuss about the chemical properties of non-metals. In the last one part, we was discuss about the metals chemical properties. So how the non-metal react with the oxygen and water and acids etc. So let's discuss. First, the reaction of the non-metal with the oxygen. Non-metal react with the oxygen to form the acidic oxide or neutral oxide. It can form two types of oxide. First is acidic oxide and second is non-metallic oxide. Our non-metallic oxide, acidic oxide are most important as compared to the neutral oxide in our syllabus. But we give the most preference to the acidic oxide. If the anything is exam is asked, only the option is given acidic oxide, basic oxide, no neutral oxide is given, then we only select the acidic oxide. एसिडिक ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स. जो एसिडिक ऑक्साइड है नॉन मेटल के उन्हें वाटर में डिजोल्व करने से क्या बनाते हैं? एसिड्स बनाते हैं. एंड दे टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड. हियर टू मेक इट करेक्ट, ब्लू टू red litmus. See, carbon is a non-metal when the burn in air to combine with the oxygen to form carbon dioxide. We know that carbon is a non-metal, then it reacts with the oxygen to gives carbon dioxide gas. If this carbon dioxide gas dissolve in water to form carbonic acid, see the reaction. Carbon dioxide gas plus water gives carbonic acids. Acidic oxide mixed with the water to form acid. Next is sulfur. Sulfur is burned in air or oxygen to form sulfur dioxide, and this sulfur dioxide is acidic in nature. When this sulfur dioxide dissolve in water to form sulfurous acid H2SO3. If we get it want to get the sulfuric acid, then sulfur dioxide again react with the oxygen. Then it's formed sulfur trioxide, and this sulfur dioxide is also acidic in nature, and sulfur trioxide gas passes through the water from the sulfuric acid. Now discuss about neutral oxides of non-metal. We know that some non-metallic oxide are neutral in nature. That means neither acidic nor basic. They do not cause the change of any litmus paper, red or blue. For example, carbon monoxide, water, nitrogen monoxide, and dinitrogen oxide. See, first, carbon when burned in insufficient supply of oxygen or air, then it forms neutral oxide is called carbon monoxide. जब कार्बन को इनसफिशिएंट सप्लाई में यानी ऑक्सीजन की कम सप्लाई में बर्न किया जाता है, देन इट्स फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड. व्हेन इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड पासिंग थ्रू द वाटर, देन नो चेंज द पीएच ऑफ वाटर, सो दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूट्रल इन नेचर. एंड वी नो दैट वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, so it's neutral non-metallic oxide. When the nitrogen of the atmosphere combine with the oxygen by lightning of clouds to form nitrogen monoxide. lightning of cloud में हम जानते हैं जब भी दो क्लाउड्स के बीच में लाइटनिंग होती है तो उसमें एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो क्या बनाती है? नाइट्रेट्स बनाती है. एंड दीज नाइट्रेट्स मिक्स विद द वाटर टू फॉर्म नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और नीचे आ जाते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं नीचे में, नॉट फॉर्म एनी एसिड. रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद वाटर. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. अब बात करते हैं वाटर के साथ डायरेक्टली. जैसे मेटल्स वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर रही थी, बट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर और स्टीम. किसी भी तरीके से वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते. सो नो रिएक्शन. रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड्स. नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स. नो हाइड्रोजन इवॉल्व. नॉन मेटल ना तो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करती है, ना ही वाटर के साथ रिएक्शन करती है. रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद सोल्ट सॉल्यूशन. दे परफॉर्म द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद द सोल्ट सॉल्यूशन. We know that more reactive non-metal displaces the less reactive non-metal from its salt solution. For this we remember the order of the non-metals. First for halogen, fluorine, chlorine, bromine and iodine, and three more. Fluorine is more reactive than oxygen, then nitrogen. But we only see in the syllabus the basis on fluorine, chlorine and bromine and iodine. When the chlorine gas is passed through the solution of sodium bromide, then sodium chloride and bromine is formed. Sodium bromide aqueous plus chlorine gas, then it's formed sodium chloride plus bromine aqueous, because chlorine is more reactive than bromine. Reaction of the non-metal with chlorine. Non-metal react with the chlorine to form covalent chlorides. Non-metal react with the chlorine to form covalent chlorides because they do not form any compound, only non-metal chlorides. Hydrogen plus chlorine, hydrogen chloride gas. This hydrogen chloride gas passing through the water form hydrochloric acid. Phosphorus react with the chlorine to form the phosphorus chloride, which is covalent in nature, because non-metal form the covalent
bonds. Non-metal form the covalent chloride because they cannot give the electron to the chlorine atom to form ions. आयंस बनाने के लिए एक मेटल डोनर होगा, क्या होगा, एक मेटल तो डोनर होगा, दूसरा क्या होगा उसका एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो डोनर और एक्सेप्टर के कॉन्सेप्ट में सारी स्टोरी है, तो इसलिए आपका ये बनेगा। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। कैसे हाइड्राइड्स बनाता है, कोवलेंट हाइड्राइड बनाता है। एंड सल्फर कंबाइन विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। जो सल्फर है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रोजन कंबाइंड विद द हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ द आयरन एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ बनाता है वो क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। सो नॉन मेटल्स टू फॉर्म द कोवलेंट हाइड्राइड बिकॉज दे नॉन मेटल कैन नॉट गिव द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन को गिव करने का कॉन्सेप्ट है हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे आफ्टर एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी मैंने इसमें दिया नहीं है, ना ही तो एग्जाम में आपको आया है, और वो काफ़ी अलग पार्ट है इससे। नेक्स्ट यूजेस ऑफ मेटल्स। कॉपर एंड द एल्यूमिनियम मेटल्स यूज्ड फॉर द मेकिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स। आयरन गोल्ड मेटल्स आर यूटेंसिल्स टू यूज टू होम। आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अमोनिया अंडर हेबर प्रोसेस। जब हम नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन को कंबाइन करके अमोनिया गैस प्रिपेयर करते हैं, उसमें आयरन हमारा कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है, हेबर प्रोसेस है ये हमारी। जिंक इज यूज टू ग्लेवनाइजिंग आयरन। जिंक क्या करता है, आयरन को ग्लेवनाइज करने के लिए यूज़ करता है, ये हम जानते हैं। क्रोमियम एंड द निकल यूज टू फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इनका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर पैकिंग द फूड मेडिसिन एक्सेट्रा। एंड सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम इज यूज टू मेक द ज्वेलरी। लिक्विड मर्करी इज यूज एज अ फिलामेंट ऑफ थर्मामीटर। सम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन यूज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम घी। वेजिटेबल ऑयल को घी में बदलने में यूज़ करते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, ये भी हमने हाइड्रोजन वाले पार्ट में ही पढ़ा। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज रॉकेट फ्यूल। कार्बन इज यूज फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। एंड सल्फर इज यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, हमारा जो नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर में सल्फर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करके उसे सिंथेटिक रबर बनाया जाता है। सिंथेटिक जैसे आपने टायर्स का, व्हीकल्स के टायर का जो रबर देखा वो हमारा वल्कनाइज्ड रबर होता है, सिंथेटिक रबर होता है। नाइट्रोजन इज यूज फॉर प्रिवेंट द ऑयली फूड टू टेंसाइड। तो ये हमारे पास बेटा कुछ यूजेस थे। दिस इज अ लास्ट पार्ट अप टू हेयर दिस चैप्टर। जैसे अभी आपके एग्जाम आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपका ये लास्ट पार्ट था। अभी भी इसके 2 पार्ट और पेंडिंग है जो हम एग्जाम के बाद में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन।